अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, दैट व्हाट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ DNA polymerases are involved in prokaryotic replications, how many types are there, and which DNA polymerase were first discovered. So let's start with the different types of the DNA polymerases in prokaryotic replication. The first type of DNA polymerase that is found in the prokaryotic DNA replication is DNA polymerase 1. These enzymes belong to the family A of the polymerase enzyme that was initially isolated from the E. coli. So, this polymerase was first time isolated from the E. coli, and it is the enzyme that is most abundant in the E. coli. What its main function? Its main function is to repair the DNA strands from 3' direction to 5' direction towards the 5' and to the 3' direction as an exonucleases. Exonucleases are those enzymes that cut the DNA from the outer side. So these are the enzymes that make the cut in the DNA from 3' to 5' direction and from 5' to 3' direction. So they work in both directions. The another function of the DNA polymerase is that it also helps with the maturation of the Okazaki fragments. In the next lecture, I will discuss in detail about the Okazaki fragments and what are these fragments. So these are the short DNA strands that make up the lagging strand during the DNA replication. So the Okazaki fragments are actually the lagging strand. Lagging strand is the dead strand, that is the newly synthesized strands. So it also helps विच वन द डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का जो एक फंक्शन ये है कि वो क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं 3' to 5' डायरेक्शन एज वेल एज 5' to 3' डायरेक्शन एज अ एक्सोन्यूक्लियस। इसके अलावा दे आल्सो हेल्प इन द मेच्योरेशन ऑफ द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते क्या, दीज आर द शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड्स that make up the lagging strands and during the DNA replication. What is other function? Its role during replication is the addition of nucleotide at the RNA primer and it moves along the 5' to 3' direction. तो इनका दूसरा काम क्या है, ये ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन क्या करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करते हैं उस जगह पे जहाँ पे प्राइमर जो है वो अटैच होता है। प्राइमर मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से पॉइंट ऑफ रीजन से पहले जो है वो अटैच होता है। तो जब तक प्राइमर अटैचमेंट नहीं होगी डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने काम स्टार्ट नहीं करेंगे। एंड अदर फंक्शन इज दैट द बाइंडिंग साइट फॉर डीएनए पॉलीमरेज 1 इज नोन एज द ऑक्टीग्लिकोसाइड। तो वो साइट जहाँ पे डीएनए जो है पॉलीमरेज 1 वो बाइंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टीग्लिकोसाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज 1. Let me show the structure of the DNA polymerase 1. Here in this figure you can see the structure of the DNA polymerase 1 that act as the exonucleases, mean it makes the external cut to the DNA. So it has the exoactive site, mean the site that is present externally to the DNA outside the regions. So it has, as I told you that जो DNA polymerase उसका स्ट्रक्चर एक हैंड की तरह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगर्स, पाम एंड थंब। तो वहाँ पे जहाँ पे पाम प्रेजेंट है वहाँ पे पोल एक्टिव साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमरेज 1 इन द प्रोकैरियोट्स. Here in this figure you can see that how DNA polymerase 1 helps in the maturation of the Okazaki fragments.
from 5 prime to 3 prime as the exonuclease activity. What it do, it removes the RNA primer. So this process is called the nick translation. nick translation का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ से प्राइमर जो है वो रिमूव होता है वहाँ पे एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, निक कहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज नोन एज द निक ट्रांसलेशन एंड इट रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ द निक अलोंग द लेगिंग स्ट्रैंड. तो वहाँ पे जो निक जो है, जो गैप जो है वो लेगिंग स्ट्रैंड के साथ साथ जो है वो मूव करता है. तो जो पोलीमराइजेशन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. ठीक है. और डीएनए पोलीमरेज जो है वो क्या करता है कि एक्सटेंशन करता है ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की. तो डायग्राम में जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है डैट इज़ द डीएनए पोलीमरेज 1. तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एज अ एक्सोन्यूक्लेसिस होती है. हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी डैट द निक क्या है, जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है क्या है, एक गैप सा नज़र आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, निक कहते हैं. ठीक है. तो जो ग्रीन है वो क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डिसोसिएट कर देता है, सेपरेट हो जाता है आफ्टर एक्सटेंडिंग द ओकाज़की फ्रैगमेंट 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स. यानी कि जैसे ही वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को एक्सटेंशन करता है 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स, तो क्या होता है कि जो डीएनए लाइगेज है वो बाइंड करता है टू द निक. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि निक है. ठीक है. निक क्या है, स्पेस है जहाँ, और जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है डैट इज़ द डीएनए लाइगेज जो कि बाइंड किया है निक के साथ. ठीक है. निक क्या है, मैंने आपको बताया है कि जो गैप प्रेजेंट आता है, जो गैप आ जाता है डबल डीएनए स्ट्रैंड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम निक बोलते हैं. तो जब उसकी एक्सटेंशन हो जाती है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स की 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो वहाँ से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना. तो हेयर इन दिस फिगर यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ द DNA polymerase dissociates after the extension of the Okazaki fragments. Then what happened? The DNA ligase bind to the nick. Here in this diagram you can clearly see that how the nick is produced. nick आपको clearly देख सकते हो कि जहाँ पे RNA प्राइमर जो है वो जहाँ से गैप आता है, RNA प्राइमर जब वहाँ से वो सेपरेट करता है तो क्या होता है कि वहाँ पे एक गैप प्रोड्यूस हो रहा है. उस गैप को जो है वो क्या होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, निक कहते हैं. सो द कंप्लीशन ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट सिंथेसाइज लीव्स अ निक. जैसे ही ओकाज़की फ्रैगमेंट्स की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एक गैप आ जाता है बिटवीन द ओकाज़की फ्रैगमेंट एंड द आरएनए प्राइमर ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड. और ये जो गैप आता है ये कहाँ पे आता है, लेगिंग स्ट्रैंड में. लेगिंग स्ट्रैंड मैंने आपको बताया था वो स्ट्रैंड होता है जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है. एक लीडिंग स्ट्रैंड जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. तो ये था डीएनए पॉलीमरेज 1. अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2 की. Here in this diagram you can see that how the DNA polymerase play important role in the synthesis of the DNA, in the proofreading and in the primer removal. So this is all about the function of the DNA polymerases during the replication in prokaryotes. So it help in the synthesis of the DNA, it help in the proofreading. proofreading मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि DNA के दौरान जो एरर्स हो जाते हैं उसको रिमूव करते हैं प्रूफ रीडिंग से. कौन, डीएनए पॉलीमरेजिस. तो और इसके साथ साथ वो प्राइमर रिमूव कर देते हैं जब जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो प्राइमर जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है. तो ये है फंक्शन किसका, डीएनए पॉलीमरेज का. Now let me talk about the DNA polymerase 2. डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो टाइप बी और द फैमिली बी से बिलोंग करता है पॉलीमरेजेस की. डीएनए पोल 1 जो है वो फैमिली ए से बिलोंग करता है, जबकि जो पॉलीमरेज 2 है इट बिलोंग्स टू द फैमिली बी. अब व्हाट इट्स मेजर फंक्शन, इस मेजर फंक्शन इज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. जो पॉलीमरेज 1 था वो बोथ डायरेक्शन में जो था एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता था, जबकि ये जो है सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जो है अपनी न्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो करता है. एंड आल्सो रीस्टार्ट द रेप्लिकेशन आफ्टर रेप्लिकेशन स्टॉप ड्यू टू डीएनए स्ट्रैंड डैमेजेस. यानी कि जब कभी डीएनए स्ट्रैंड में डैमेज होता है तो क्या होता है, इट हेल्प्स टू रीस्टार्ट द रेप्लिकेशन. तो जब कभी रेप्लिकेशन स्टॉप होती है ड्यू टू द
damage in DNA strand, so it helps to restart the DNA replication. Another function is that the DNA polymerase 2 is found in the replication fork. जो DNA polymerase 1 था उसका function जो था that was related to the Okazaki fragments, और ये कहाँ पे present होता है, replication fork में. What it do, it helps इन द डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर पोलीमरेजेस, और इसका काम क्या होता है कि ये जो दूसरे पोलीमरेजेस हैं उनको डायरेक्शन देता है कि उन्होंने क्या काम और उनकी एक्टिविटीज़ क्या होगी, उनको कंट्रोल करता है. सो दिस इज़ द DNA polymerase 2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द DNA polymerase 3. This is the primary enzyme that is used in DNA replication and it belongs to the family C or the type C. तो सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल करता है वो DNA polymerase 3 है. DNA polymerase 2 जो है ना उसका फंक्शन इतना जो है वो नोन नहीं है, जबकि DNA polymerase 1 और DNA polymerase 3 जो है इनका जो है ना वो मेजर रोल है इन द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन. सो इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द प्राइमर. इसका काम क्या है कि ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है 3' of the hydroxyl group of the primer. इसके अलावा it has a 3' to 5' exonuclease activity, hence it can also proofread. तो जहाँ कहीं पे भी exonuclease activity होगी वहाँ पे उसका फंक्शन प्रूफ रीडिंग भी होगा. सो ये क्या करता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जितने भी जो एरर्स आते हैं उसको क्या करता है, रिमूव करता है, उसकी प्रूफ रीडिंग करता है और उसको एक्यूरेट डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है. तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द DNA polymerase 3. Now let's talk about the DNA polymerase 4. DNA polymerase 4 belongs to the Y family and it is involved in the non-targeted mutagenesis. Non-targeted mutagenesis का मतलब होता है जिनको हमने टारगेट नहीं किया होता और वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, non-targeted mutagenesis. सो इट्स एक्टिवेशन इज़ बेस्ड ऑन स्टेलिंग एक्टिविटी ऑफ द रेप्लिकेशन फोक. यानी कि रेप्लिकेशन फोक में अगर जो है वो कोई स्टेलिंग एक्टिविटी आती है तो वहाँ पे जो है ना ये एक्टिव हो जाता है DNA polymerase 4. क्यों? क्योंकि ये तो म्यूटाजेनेसिस में इन्वॉल्व है, ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं है. सो व्हेन इट इज़ एक्टिवेटेड इट क्रिएट्स अ चेक पॉइंट स्टॉप्स रेप्लिकेशन. तो क्या होता है कि जब कभी भी म्यूटाजेनेसिस होती है तो ये एज अ चेक पॉइंट करता है, वहाँ पे सबको चेक करता है. तो जैसे ही उसे लगता है कि रेप्लिकेशन में कोई एरर है तो उस रेप्लिकेशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है एंड गिव्स टाइम टू प्रॉपरली रिपेयर लेयर्स इन द न्यू DNA स्ट्रैंड. तो न्यू सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलता है, और ये तब होगा जब पोलीमरेज 4 की जो एक्टिवेशन जो है वो स्टार्ट होगी. What it also do, it also involved in the repair mechanism of translation synthesis. तो ये क्या करता है, ट्रांसलेशन सिंथेसिस, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस भी जो एरर्स आते हैं उसको भी क्या करता है, रिपेयर करता है. इट डज़ नॉट हैव न्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि ये प्रूफ रीडिंग का काम नहीं करता. देयरफॉर इट इज़ प्रोन टू एरर्स इन DNA रेप्लिकेशन. तो ये DNA रेप्लिकेशन में अगर कोई भी एरर आता है तो ये उसको करेक्ट नहीं कर सकता. इसका मेन काम क्या है कि जहाँ पे म्यूटाजेनेसिस हो रही थी ये बस वहाँ पे चेक पॉइंट करता है, तो वहाँ पे क्या करता है, DNA रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द DNA polymerase 5. DNA polymerase 5 belongs to the Y family with high regulatory activity. इसकी एक्टिविटी क्या है, रेगुलेशन की तरफ है. So it is produced only when DNA is damaged and it requires translation synthesis. तो ये तभी एक्टिव होगा जब DNA में कोई डैमेज होगा. So it also lack the exonuclease function. तो DNA polymerase 4 और DNA polymerase 5 में कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं पाई जाती. दे कैन नॉट प्रूफ रीड द एरर इन द DNA replication. Another important enzyme is the tag DNA polymerase. Tag DNA polymerase is actually the thermostable type of DNA polymerase 1. यानी कि DNA polymerase 1 ही है लेकिन ये thermostable है. thermostable का मतलब क्या है, thermostable mean that are stable even at the high temperature 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक. 90 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक ये क्या है, स्टेबल हैं.
और ये सबसे पहले जो डिस्कवर हुए थे दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मस एक्वाटिकस, dashed why they are known as the tag DNA polymer. So tag is was tag, T is thermus and AQ is aquaticus. So these are the species that were found in the hot spring water, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है थर्मस एक्वाटिकस वहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है इसलिए इनके अंदर एक्टिविटी होती है कि ये जो है वो क्या कर सके, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ये स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे। सो इट इज़ एब्रीवेटेड एज द टैग पॉलीमरेज, टैग पोल भी इसको बोलते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये होता है जब हमने नंबर ऑफ कॉपीज़ को डीएनए की इंक्रीज़ करना होता है, उसकी एम्पलीफिकेशन करनी होती है, या कोई भी जीन जो है उसको एम्पलीफाई करना होता है, सेपरेट करना होता है डीएनए से, तो तब हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये क्या करता है? एम्पलीफाई करता है शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ड्यू टू इट्स थर्मोफिलिक नेचर इट इज़ एबल टू विस्टैंड हाई टेम्परेचर दैट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीसीआर। तो पीसीआर में इसको हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब पहला स्टेप जो पीसीआर में होता है वो डीनेचरेशन होता है, इसीलिए टैग पॉलीमरेज को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसी वजह से जो इसने क्या किया, रिप्लेस किया था डीएनए पॉलीमरेज को, दैट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द इकोलॉय। सो दीज वर द प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस दैट हेल्प इन द रेप्लिकेशन एंड इन द प्रूफ रीडिंग ऑफ द रेप्लिकेशन। सो आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं प्रोकैरियोट्स में, उनका क्या फंक्शन है और वो कितनी टाइप्स के होते हैं, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है, वो किस तरह से बाकी पॉलीमरेजेस से डिफरेंट है, बाकी जो है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है, थर्मोस्टेबिलिटी नहीं है उनकी, जबकि टैग पॉलीमरेज जो है वो थर्मोस्टेबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द different types of polymerases that are found in the prokaryotes. In the next lecture we will discuss about the Okazaki fragments, and then we will talk about the replication fork, and then we will talk about the leading strand and the lagging strand. और आखिर में इन सबको समझने के बाद ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होती हैं, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को पूरा समझने से पहले हमें डीएनए रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है उसको समझना पड़ता है कि कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी वजह क्या होती है बनने की, ठीक है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, प्राइमर्स क्या होते हैं। तो इस सब का हमें जब तक पता नहीं होगा हम डीएनए रेप्लिकेशन को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो जब ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर कर लेंगे तो एंड में जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी डीएनए रेप्लिकेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनए पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।